Good afternoon class. Today we are going to discuss about preparation of nitric acid through Ostwald's process. Students, nitric acid, that is HNO3, its preparation is asked in exam, and based on Ostwald process. So talking about this, it has been asked since in 2006, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16. You can see here. Okay. So how the question is asked in your exam? It is asked in the manner that explain Ostwald's method for formation of nitric acid with suitable diagram and write the related equation for the reaction. How will we obtain Amalraj? Okay, Amalraj, that is aqua regia. So in this manner question is asked in your exam. It may ask in different way, like explain the formation of HNO3 by Ostwald process, with diagram give equation. Or it may ask explain the formation of nitric acid by Ostwald method with suitable diagram, how it react with tin metal. Okay, and give the equation for related reaction. How will test nitrate radical in this acid. It may also ask explain the method of the formation of nitric acid from ammonia. What is the reaction of this acid with the solution of potassium iodide? Write the equation for related reaction. Okay, so students, as basically in all type of question you have seen that it has been asking about the diagrammatic representation and about the chemical reaction. So students, talking about Ostwald process, the basic principle of this process is, in this process ammonia is oxidized to NO, okay, that is nitric oxide, by oxygen of air at 800 degrees Celsius in presence of platinum catalyst. So students, basically in the Ostwald process, what are the requirement? It is ammonia, it react with oxygen in the presence of platinum catalyst and at 800 degrees Celsius temperature, and result in formation of nitric oxide. Here only nitric oxide is formed. Then what happened? This nitric oxide is oxidized to nitrogen dioxide. So nitric oxide react with oxygen and form nitrogen dioxide. So you can see here it forms nitrogen dioxide. Then what happens, students? The nitrogen dioxide formed is absorbed in water, that is H2O, to form HNO3, that is nitric acid. Okay, so in this manner students, nitric acid is produced. Talking about process, so here the plant used, I will show you in next slide. What happened in the overall process? A mixture of dry ammonia, which is of 1 volume, and purified air 9 volume is passed through a catalyst chamber, okay, containing platinum gauze. The temperature of chamber is maintained at 800 degrees Celsius and ammonia is readily oxidized to nitric oxide. The yield is approximately 95% because the reaction is exothermic. The heat evolved is used for maintaining temperature of chamber. The gas received from catalyst chamber are cooled to 50 degrees Celsius by passing through a cooling chamber and then introduced into oxidizing tower. Here nitric oxide is oxidized to nitrogen dioxide by oxygen of air, and the mixture of gases containing NO2 is passed to absorption tower where NO2 is absorbed in water to yield solution of nitric acid. Basically students, you can see here in the diagram, this is the Ostwald process setup. Here there is a catalytic chamber where the platinum catalyst is there and temperature was maintained up to 800 degrees Celsius. Then there is a oxidizing tower
where the nitric oxide react with oxygen to form nitrogen dioxide. Then there is a chamber where you can see the absorption of water take place. Nitrogen dioxide absorb water and forms nitric acid. Okay, students, if we are talking about the concentration and purification of nitric acid, so dilute nitric acid obtained in the above process contain oxides of nitrogen and water as impurities. Okay, there will be oxides of nitrogen and water as a impurity. So impure and dilute nitric acid is subjected to fractional distillation and middle fraction of distillate is collected. तो क्या होगा, इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, जो मिडल होगा डिस्टिलेट का वो कलेक्ट कर लिया जाएगा और इक्वल वॉल्यूम जो होगी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की वो उसमें ऐड की जाएगी, फिर इसको डिस्टिलेशन कराया जाएगा, देन वाटर इज़ रिमूव्ड हियर. ओके, इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू हॉट डिस्टिलेट, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डिस्टिलेट इवेपोरेट एंड कलरलेस प्योर नाइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड. मतलब ओवरऑल डिस्टिलेशन के कई प्रोसेस फॉलो होंगे, जिसमें एक स्टेप में हम वाटर का भी रिमूवल करेंगे, दूसरे स्टेप में हम उसके ऑक्साइड को रिमूव कर देंगे. ठीक है, इस तरीके से जो हमें प्योर नाइट्रिक एसिड मिलेगा. बात करें प्योर क्रिस्टल्स के नाइट्रिक एसिड की, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है -41.3 डिग्री सेल्सियस, और जो कलरलेस क्रिस्टल होते हैं मेल्टिंग के बाद वही क्या होते हैं 100% नाइट्रिक एसिड. फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट, जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड जब आपसे कहा जाता है, सो इट इज़ 98% प्योर नाइट्रिक एसिड. इट हैज़ ब्राउन येलो कलर, इसका ब्राउनिश येलो कलर रहता है. आप देखेंगे इसमें ब्राउन वेपर्स निकलते रहते हैं. इट फॉर्म्स ब्राउन येलो फ्यूम्स ड्यू टू डिजॉल्व ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और N2O3 है. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. फिजिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि बात कर लेते हैं कि अगर ये कलरलेस है, लिक्विड है, सॉल्युबल है वाटर में हर प्रोपोर्शन में. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसकी 78.2 डिग्री सेल्सियस है. स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन रेज होता है एक्वारीजिया, जो आपको बोला गया था अमल राज. ठीक है, कभी कभी पूछता है व्हाट इज़ गिव द प्रिपरेशन ऑफ एक्वारीजिया. तो इसमें आपको सीधे करना है, ये फॉर्म कैसे होता है, जो मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम 1 वॉल्यूम में लेते हैं, एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 वॉल्यूम में लेते हैं. मतलब 1:3 का रेशियो होता है. ठीक है, एक्वारीजिया के फॉर्मेशन के लिए इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्वारीजिया. तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 वॉल्यूम आपका नाइट्रिक एसिड है, 3 वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये फॉर्म करेगा एक्वारीजिया, दैट इज़ NaCl. अब इसमें स्टूडेंट्स होगा क्या, जो प्रेजेंस है ये फ्री क्लोरीन का एक्वारीजिया में, यही इसी की वजह से ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. और ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये जो नोबल मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड आपका Au हो गया, प्लैटिनम आपका Pt हो गया, इसे भी क्या करता है, डिज़ोल्व कर देता है. ओके, तो यहाँ पे आप नॉर्मल सा रिएक्शन यही शो करा रहा है कि कैसे गोल्ड डिज़ोल्व हो रहा है. तो इसके लिए आपने देखा कि एक्वारीजिया जो टेट्राक्लोरोऑरिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है, ये आपका. ठीक है, ये ऑरिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा. ऐसे ही अगर प्लैटिनम के केस में देखेंगे तो कभी कभी प्लैटिनम का रिएक्शन भी पूछ देता है PtCl2 के साथ, जो कि हमारा NaCl एक्वारीजिया का मेजर है. क्लोरीन क्या है, वो आराम से रिलीज़ हो सकता है, तो वही क्लोरीन रिएक्ट करता है और बना देता है PtCl4. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ आपको हेक्साक्लोरा प्लैटिनिक एसिड लिख दिया है, दिस इज टेट्राक्लोरो प्लैटिनिक एसिड. ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो टेट्राक्लोरो प्लैटिनिक एसिड था, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, हेक्साक्लोरो प्लैटिनिक एसिड. यूज़ क्या होता है एक्वारीजिया का, लेबोरेटरी रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लीन करता है सरफेस की नोबल गैसेस की. TNTs हो गई, पिक्रिक एसिड हो गई, इनके फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है. मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र्स की, जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, एट्सेट्रा. ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में आते थे आपके, इन सब क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया. ओके, आप फिर भी एक बार देख पाते हैं. अगर अमल राज की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं 1 रेशियो में आपका नाइट्रिक एसिड है, 3 रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, यही आपका क्या होता है, अमल राज, या आप इसी को क्या कहते हैं, एक्वारीजिया. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा था कि अगर
रिएक्शन बताना है टिन का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो टिन ये आपका एसन है, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, स्टेनस नाइट्रेट, ठीक है, SnNO3 का होल ट्वाइस। अगर बात करें इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आप देख पा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये आयोडीन बनाता है और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए नाइट्रेट रेडिकल की टेस्ट की, तो जब हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन सॉल्ट में ऐड करते हैं और उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते जाते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो एक ब्राउन कलर की रिंग मिलती है, ठीक है। इसी के हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट, इससे हम नाइट्रेट रेडिकल का प्रेजेंस बताते हैं, इसे हम नाइट्रेट रिंग कहते हैं। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।